So, we will discuss today losses in optical fibers. Okay. That idea is that in fiber we pass light, we pass information in form of light. So, we have to see what are the different factors that lead to light loss, that when we pass light through the optical fiber from one place to another place, it is required to know that whether the same light intensity reaches other end or there may be some loss. Okay. So, that we have to consider, and what will be the effect of those losses. So, that is mainly the losses in optical fibers. Losses in optical fibers. So, there are mainly three type of losses, that is bending loss, okay. Second is scattering, scattering of light which lead to loss, so loss due to scattering. So, okay. And third is the absorption. So, this bending loss, it is further divided into two categories, that is macro bending and micro bending. Okay. And this scattering loss further divided into two, that is impurity scattering and Rayleigh scattering. So, bending losses, two categories, macro bending and micro bending. So far we have seen the optical fiber and we have considered it like this, okay, core and cladding. So, in this description we have drawn the figure like this, and here we are considering that fiber to be a state. But in practice, when you lay down the link, when you lay down the fiber line, then you cannot keep the fiber state, because it has to be it has to follow the curved path, okay. Because if you put it straight, then it must be hanging in air. Okay. So, for safety purpose we cannot put it hanging in air, we have to put it underground, and if you put it underground then also you cannot make it straight. So, obviously you have to draw the line through curved path, and normally it is done along the roadside, because roadside are the safe places. So, अगर किसी agricultural land या किसी दूसरी जगह से पास करेंगे तो भी दिक्कत आएगा. So, for safety purpose it is along the road sides, and roads are not straight, so it has to be turned. So, whenever you make the fiber curved, तो जब आपका fiber इस तरह से curve होगा, है ना, suppose this is the core and this is the cladding, and fiber you are bending. So, macro bending is bending over the large radius. Okay. So, obviously fiber will be bent like this, and the light ray which is now going this way. Okay. What happened now? What we have considered here, that there in this case everywhere light is scattering at light is hitting the core cladding interface at critical angle or higher than that. But due to this, due to bending, there will be certain points at the bend where the light will strike the core cladding interface at angle less than critical angle. Okay. Obviously होगा ना, because अगर आप उसको bend कर रहे हैं तो अगर light ray इस तरह से जाएगा, so here you expect light will be striking the interface at less angle than critical, and whenever it is at less angle than critical, then what happen? Partially it will refract, partially it will refract into cladding, and whatever amount refracting into the cladding, that is lost.
and if this type of process happens in the fiber, say 1 kilometer fiber में अगर 100 times हो रहा है जगह जगह, तो ultimately it will lead to enough loss. And what will happen? The amount of intensity you have sent through the fiber, what you will receive at other end will be reduced. So that way we say that it is a loss of light. When you receive at other end, you are sending some illumination power, some light, but the light reaching at other end is less. For whatever reason it is less, we will call that it is lost. वो loss है, उसको हम loss की form में लेंगे. So that loss is because of this macro bending. There may be micro bending. Micro bending means bending sharp bends. Sharp bend means कि हो सकता है आपका जो fiber you have seen a millimeter thin core है, millimeter से भी कम है. तो when the fiber is packed, manufactured or put inside the cable, तो हो सकता है किसी समय वो जो आपका फाइबर है वो थोड़ा सा किसी पॉइंट पे ट्विस्ट हो गया, उसमें किंक आ गया, उसमें हल्का सा किंक आ गया उसमें. तो अगर फाइबर में थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा किंक बन गया, सपोज दिस इज द कोर, ओके, या फिर ये कह लो कि यहाँ से आपका ट्विस्ट हो गया फाइबर, किसी तरह से मुड़ गया थोड़ा सा. So what happen when the light going like this? When it reaches such points, again it will get, because here it will be deviate from the TIR condition. So wherever there is deviation from total internal reflection, light will partly enter into cladding, and obviously the intensity will be reduced. So this is say small bending due to kinks or twist in the fiber, है ना, किसी तरह से. So that is this. Before going to other loss classes, this bending of fiber give rise to loss of light. Okay? So there is positive aspect of this bending loss. Bending leads to loss in the intensity of light that reaching at other end. तो ये नुकसानदेह है, not desirable. But हर चीज़ का कभी कहीं ना कहीं कोई फायदा भी हो सकता है. आप इसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, and that is the positive aspect of bending. You can make its use in a positive manner, and that is the positive aspect of bending. And that leads to different applications. You can use it for different applications. तो application में क्या हो सकता है? You can use it for mode filtering. You can use it for introducing attenuation. Okay? And third is the intrusion alarming. Mode filtering क्या है? In the straight fiber, you expect once it is a multi-mode fiber, then higher order modes are also propagating through the fiber. And for certain application, if you want to filter out higher angle rays, आप चाहते हैं कि higher angle rays should not reach at other end, है ना, without doing anything. Fiber वही है, but आप चाह रहे हैं कि higher order mode है. Higher order mode, I hope you understand. The ray traveling at higher propagation angle, they should not reach at other end. You want to filter, remove them out. You bend it. जब आप bend करेंगे, you expect some light will loss, refract into cladding. तो ये जो light refracting into cladding जो है, ये कौन सी, which ray will first refract into cladding? ये which mode will suffer this loss first? Higher order mode. So if you keep fiber bend, then what you will see? Higher order rays जो है वो अपना, they will pass into the cladding, refract, and they will not reach at other end. Whereas low order mode जो है, they will propagate, because they will not suffer the this. For them TIR deviation नहीं होगा. So this way it can be used as a mode filtering.
इंट्रोड्यूस एटेन्यूएशन। आपके पास कोई एक फाइबर सिस्टम है और एंड यू आर सेंडिंग सम लाइट थ्रू इट एंड यू आर रिसीविंग इट एट अदर एंड, बट फॉर सर्टेन एप्लीकेशन यू वांट टू गेट लेस इंटेंसिटी। आप चाहते हैं कि किसी मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, नया फाइबर लिए बिना या सोर्स को चेंज किए बिना आप चाहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी एंड पे कम पहुंचे। व्हाट यू कैन डू, बेंड कर दीजिए उसको, लाइट इंटेंसिटी विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। एटेन्यूएशन मतलब कम हो जाना, कम करना, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी रीचिंग एट अदर एंड सप्रेस हो जाएगी। सो विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस और एनी डिफिकल्ट टास्क यू कैन सिंपली रिड्यूस द इंटेंसिटी जस्ट बाय बेंडिंग इट, और नहीं चाहिए तो उसको सीधा कर दो। ओके, सो दैट इज व्हाट इंट्रोड्यूस अलार्मिंग। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग इज द इंट्रूजन अलार्मिंग। इंट्रूजन अलार्मिंग ये एक तरह से डिटेक्शन सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एनआईटी की जो बाउंड्री लगी है बाहर, जिस पे आपका बाउंड्री के ऊपर एक फेंसिंग वायर है, आप चाहते हैं कि रात को उसकी या कभी दिन में भी उसकी मॉनिटरिंग होती रहे। कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ पे गार्ड 24 आवर नहीं रह सकता, एंड यू एक्सपेक्ट कि पीपल मे क्लाइंब ओवर द वॉल and they will enter into the campus or any other restricted zone. तो आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो what you do, जो आपकी फेंसिंग वायर लगा है, along that fencing wire you put a fiber cable and keep it straight. So whenever someone try to climb over the fence, है ना, फेंसिंग के ऊपर अगर कोई क्लाइंब करेगा, चढ़ेगा, पकड़ेगा उसको, पैर रखेगा, तो वो बेंड हो जाएगा। वंस बेंड होगा तो क्या है, दैट फाइबर लाइन इज ऑपरेटिंग 24 आवर। ओके, सो गेट 1 पे एक लाइट सोर्स है, वहाँ से फाइबर पे लाइट लॉन्च हो रहा है, और गेट 2 पे आपका एक डिटेक्टर सिस्टम लगा है जहाँ पे वो लाइट रिकॉर्ड हो रहा है, एंड यू हैव गिवन लाइट इनपुट एंड यू आर रिकॉर्डिंग द लाइट आउटपुट। सो आपका कंटिन्यूसली लाइट वॉच हो रहा है। इफ़ समवन ट्राई इन बिटवीन, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे क्लाइंब करेगा, बेंड होगा तो लाइट इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सिस्टम को कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि किसी के क्लाइंब होने से कितनी इंटेंसिटी कम होती। पहले आपको टेस्टिंग करेंगे ना लैब में कि अगर एक ह्यूमन बीइंग क्लाइंब करता है तो स्ट्रेट फाइबर जो है कितना बेंड करेगा, और उतने बेंड होने से इंटेंसिटी कितना लॉस हो, रिड्यूस होगा। तो व्हेनेवर डिटेक्टर डिटेक्ट दैट रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, वो आपका अलार्म सेंसिटाइज कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में कहीं कोई छेड़खानी हो रही है, तो देन गार्ड कैन गो एंड वॉच। दूसरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे बैंक्स में लॉकर सिस्टम, लॉकर रूम्स है, और एनी ट्रेजरी रूम जहाँ पे बैंक्स में अपना उनका मनी रखा है, या और एनी अदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। फाइन, सो देयर व्हाट इट इज डन दैट अंडर द carpet they put fiber, optical fibers. Okay, optical fiber they have put under the carpet, and it is made in between somewhere, it is made cushion like, कि जैसे अगर आप कारपेट पे पैर रखेंगे तो वो थोड़ा कुशन टाइप है, वो थोड़ा फाइबर आपका जो कारपेट है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, एंड इट इज़ ऑल द टाइम पासिंग लाइट। तो जैसे किसी जगह वो बेंड होगा तो उधर इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे इंटेंसिटी रिड्यूस होगा तो आपका अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे कहीं एंट्री भी करेगा तो एकदम सिस्टम बता देगा कि somebody has entered the zone. So this way, these are the intrusion alarming system and one can design. And based on this you can think of anything else. आप कुछ और भी सोच सकते हैं। पहाड़ों में जैसे लैंडस्लाइड को आइडेंटिफाई करना है, तो रोड साइड, अब इतने बड़े रिमोट एरिया में रोड्स हैं, तो यू सी रोड ने जो हिल वेयर यू एक्सपेक्ट कि वहाँ से स्लाइड हो सकता है, तो उस क्रिटिकल पोर्शन में आप फाइबर लाइन डाल दीजिए। तो अगर कहीं बीच में स्लाइड होगा तो आपकी वो फाइबर लाइन ब्रेक हो जाएगा, नहीं ब्रेक हो जाएगा तो आपको वो सिस्टम बता देगा, और फाइबर लाइन वो ठीक काम कर रही है, सिग्नल आ रहा है कंटिन्यू, इट मीन्स नथिंग हैज नो लैंडस्लाइड हैज अकर्ड. So this way different application you can think of based on, और इसी को यूज़ करके we can use fiber as a sensor, क्योंकि bending leading to reduction in intensity and that is sensing something. Now क्या सेंस करना है वो डिपेंड करता है कि
व्हाट कॉजिंग बेंडिंग, आप किसी ह्यूमन बीइंग के चलने से बेंड हो रहा है या कोई और स्लाइडिंग से बेंड हो रहा है, तो इट विल सेंस दैट, सो दैट एज ए सेंसर इट कैन बी यूज. सो दिस इज वन एप्लीकेशन एरिया ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, दैट इट कैन बी यूज्ड एज ए sensor, for example like this. Second, absorption, scattering. Again we take a fiber, and in impurity scattering, whenever we make a core material जब बनाएंगे हम solid, normally it is silica होगा या कोई और मटेरियल होगा जिसको हम लैब में बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे. तो जब ये बनाया जाता है, सॉलिड बनाने के बाद उससे वायर्स ड्रॉ किए जाते हैं, छोटी थिन वायर्स प्रोड्यूस की जाती है. सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम सिंथेसाइज करेंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सिलिका बनाएंगे, उसमें देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि उस सॉलिड के अंदर कोई एयर बबल रह गया है ना. हो सकता है कि एयर बबल ट्रैप हो गया, तो वो एयर बबल यहाँ पे इस तरह से ट्रैप हो जाएगा. हो सकता है कुछ फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे उसमें इम्प्यूरिटी एटम आ गया, जो आपने मटेरियल यूज़ किया है वो हाईली प्योर ना होके देयर इज सम इम्प्यूरिटी. देयर मे बी क्रैक, जब ये लिक्विड से सॉलिडिफाई होगा, सूखेगा, तो वहाँ पे कोई क्रैक डेवलप हो सकता है. और कुछ भी इनहोमोजेनिटी, दीज ऑल आर कॉल्ड इनहोमोजेनिटीज. वी एक्सपेक्ट फाइबर टू बी very neat, clean and solid material, but any deviation from that it is called inhomogeneity. So any inhomogeneity present in the fiber, it will lead to scattering. कि जब आप now when you are allowing light, और जब light यहाँ पे जाएगा इस पे, तो what you expect? It will scatter. Light will be scattered by this object. ये सभी डायरेक्शन में जाएगा. इसी तरह से अगर यहाँ वाइड है, क्रैक है, सो इट विल गेट स्कैटर्ड. और वंस इट इज स्कैटर्ड, एंड आफ्टर स्कैटरिंग वट एवर फॉल एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस एट लेस देन क्रिटिकल एंगल, दैट विल लॉस रिफ्रैक्शन टू क्लैडिंग, है ना. सो दैट वे इट विल लीड टू लॉस. impurity scattering due to impurities present in the core material. Another is Rayleigh scattering. Rayleigh scattering is a general phenomenon which you already know. You might have heard Rayleigh scattering. It is wavelength dependent. पढ़ा है, सुना है, कैसे, how it depends. Rayleigh scattering. 4, yeah. That every wavelength scattered by the medium, जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और मीडियम थ्रू विच लाइट passes, every wavelength gets scattered, but the scattering is inversely proportional to 4th power of the wavelength. Okay, so that scattering here proportional to 1 by lambda 4. Okay, so it is suppose lambda. So once these are different lambdas, here is the visible region, then IR. So visible region less wavelength है, infrared region higher wavelength है. So where the scattering will be more effective, for which wavelength scattering will be more? Obviously low, है ना. Low wavelength will get more scattered and higher wavelength get less scattered. So it's a general phenomenon. It is true for any wavelength, irrespective of, है ना, due to this scattering. So उसके लिए आपका ग्राफ इस तरह से आता है, that this is the scattering loss, intensity loss. So loss is more at low wavelength, and as you go to higher wavelength, loss is less. Okay, so this scattering put lower limit of 850, 800 nanometer. That we can use light in optical fiber communication of wavelength more than 800 nanometer. 800 nanometer या
8000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा की लाइट हम रेडिएशन यूज़ करेंगे टू मेक सिग्नल प्रोपेगेट थ्रू फाइबर, बिकॉज 0.8 माइक्रोन 8000 एंगस्ट्रॉम के लिए बियॉन्ड दिस द लॉस इज लिटिल लेस। उससे पहले यूज़ करेंगे तो लॉस बहुत ज़्यादा है, राइट, लॉस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी लाइट विल नॉट रीच एट फार्दर एंड विद सफिशिएंट इंटेंसिटी, है ना। सो दिस इज ए जनरल Rayleigh scattering. So before going for absorption, we will now quantify these losses. इनको थोड़ा काउंट फॉर कैसे करेंगे न्यूमेरिकली, या मीडियम, बेसिकली जो मीडियम है, मीडियम पार्टिकल लीड्स टू स्कैटरिंग। मीडियम जो मीडियम है, मीडियम पार्टिकल आर गिविंग राइज टू स्कैटरिंग, बट दिस स्कैटरिंग इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। इसका रीजन मीडियम है, मीडियम बिकॉज देयर इज नो इम्प्यूरिटी। जैसे हमने पिछले अदर केसेस में किया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज और डिसकंटिन्यूटी, नो, इट इज योर मीडियम इज हाईली प्योर, नो इम्प्यूरिटी, नो कंटेमिनेशन, but still it will be scattered. Rayleigh, yeah, 1 by lambda 4 मतलब हायर वेवलेंथ गेट लेस स्कैटर्ड। और यही आपने पढ़ा भी होगा ना, लाइट सिग्नल जो एक आपके रेड क्यों होते हैं, रेड सिग्नल क्यों होते हैं, रेलवे लाइन है या कहीं भी है, रेड वाले मतलब रेड मीन्स हायर वेवलेंथ, तो हायर वेवलेंथ गेट लेस स्कैटर्ड। तो लेस स्कैटर्ड का मतलब है वंस इट इज लेस स्कैटरिंग इट कैन प्रोपेगेट लॉन्गर, क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू फर्दर, ओके। सो देन व्हेन इट इज गोइंग फर्दर in between it will be scattered, so like that. So here loss, once there is loss in the optical fiber, for example this is the fiber of some length L and we put light power Pn, using some LED or laser diode we launch light into the fiber, light of some power। जैसे आपका बल्ब है 9 वॉट की एलईडी है ना, 2 वॉट का एलईडी है, तो जो लाइट है ना, इल्यूमिनेशन पावर, इसको हम मेज़र करेंगे लाइट पावर। सो दैट पावर इज पी इन। जो लाइट हम लॉन्च कर रहे हैं इसकी कुछ इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन पावर है ना, दैट पावर इज पी इन। दिस पावर वी हैव लॉन्च्ड इनटू द फाइबर एंड हियर वी रिसीव हियर यूजिंग ए डिटेक्टर रिसीव दिस। सो डिटेक्टर डायरेक्टली मेजर पावर, डिटेक्टर के ऊपर लाइट फॉल होगा, लाइट रे फॉल होगा, तो वो मेजर करके बता देगा कि हाउ मच पावर इट इज इंटेंस जो वहाँ पहुँचा है। सो दैट सपोज पावर रीच हियर इज पी आउट, P0, okay। So then we define loss. Loss is defined as log 10 to the base P out by P in. Obviously P out by P in will be less, okay, P out by P in will P I will be less, and log of less than 1, it will be less than 1. So log of less than 1 नेगेटिव है, तो टू मेक इट पॉजिटिव यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वी मेक मल्टीपल ऑफ 10 एंड दिस मच डेसिबल, दिस इज द यूनिट, है ना। तो लॉस कितना होगा, इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे। यू लॉन्च्ड सम लाइट पी इन एंड लाइट रीचिंग एट अदर एंड इज पी आउट। सो इसको लॉस को कैसे हम क्वांटिफाई करेंगे, है ना। तो लॉस को क्वांटिफाई करने का तरीका है यू कैलकुलेट दिस वे एंड वट एवर यू गेट इज द डेसिबल, दैट मच डेसिबल, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं डेसिबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट यू ट्राई, पी इन है आपका 1, पी इन है 1 वॉट कह लीजिए, 1 मिली वॉट कह लीजिए, वट एवर यू कॉल 1 है। और पी आउट अगर आपका आता है, पी आउट, इफ पी आउट इज 0.9, okay, then loss will be
0.45 dB, है ना, बिकॉज यू विल राइट P नॉट P आउटपुट 0.9 डिवाइड बाई 1, ओके। तो ये जो कैलकुलेशन करके आपको ये मिलेगा 0.45 dB। सो अगर आपका 10% लाइट लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो गया ना, तो इसको जब dB के टर्म में आएगा तो इसको हम 0.45 dB कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ यू से इट इज 0.6 गिव यू 2.2 dB, ओके। अगर 0.5 है देन इट इज लॉस इज 3 dB। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि dB मेजर जो हम करते हैं dB कितना होता है, ओके। So this is loss. Loss is this much and now this much loss occurring over this length. अब सपोज आपने मेजर किया इसको 1 किलोमीटर फाइबर लेकर, तो आपको कुछ लॉस मिला। किसी दूसरे ने इसको कैलकुलेट किया 100 मीटर फाइबर लेकर, उसको भी कुछ मिलेगा, वो डिफरेंट होगा। तो स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? तो टू स्टैंडर्डाइज इट वी विल कैलकुलेट लॉस पर यूनिट लेंथ, बिकॉज ये जो लॉस निकाला है ये तो लेंथ डिपेंडेंट हो गया ना। अगर आप शॉर्टर लेंथ लेंगे तो आपका ये कम होगा, है ना, शॉर्टर लेंथ पे लॉस कम होगा। तो लॉन्गर लेंथ लेंगे लॉस ज़्यादा होगा, तो उसको क्वांटिफाई तो नहीं हुआ ना प्रॉपरली। सो वी विल डिफाइन हाउ मच लॉस पर किलोमीटर, बिकॉज फाइबर लॉन्गर डिस्टेंस पे यूज़ करेंगे तो उसको पर सेंटीमीटर या पर मीटर नहीं लेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से इसको वो किया जाएगा इवेलुएट। सो दैट इज व्हाट एटेन्युएशन। एटेन्युएशन इज लॉस डिवाइड बाई लेंथ, ओके, दैट इज -10/L log 10 to the base P out by P in, and that is A. That is, we can write A equal to -10/L log P out by P in, and this attenuation is dB per kilometer. A attenuation dB per kilometer. That how much dB per kilometer? अब how much dB per kilometer पता चल गया तो आप इसको फिर किसी भी लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दिस एटेन्युएशन इज अनदर फाइबर स्पेसिफिकेशन। जब आपको मैन्युफैक्चरर फाइबर सप्लाई करेगा तो दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ही विल सप्लाई कि उसका जो फाइबर है उसका एटेन्युएशन कितना है, ओके। एंड दिस formula is important formula to design a optical fiber link, okay. This formula useful in designing optical fiber link. Optical fiber link का मतलब है कि आप यहाँ से चंडीगढ़ के बीच एक फाइबर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। So for that you will use a fiber, optical fiber. You will use some light source, laser या LED यूज करेंगे, okay. You will use some detector to detect the light and you will use some fiber, okay. So ये जो फॉर्मूला है इसमें you have 4 parameters: attenuation, length, P out and P in, okay. इन 4 में से 3 आपके फिक्स हो जाएंगे, चौथे को आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास फाइबर अवेलेबल है कि हमने यही फाइबर यूज़ करना है तो आपका ए फिक्स हो गया, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने यहाँ से लेके चंडीगढ़ के लिए लिंक ड्रॉ करना है, कि आप सीधे यहाँ से लेके चंडीगढ़ जाके ही उसको अंडर जो केबल है उसको चंडीगढ़ में ही सिग्नल रिसीव करेंगे, तो लेंथ भी डिफाइन हो गया, ओके। अब यह है पी आउट पी इन। आपके पास लाइट सोर्स किस इंटेंसिटी का है, जो लाइट पावर डाल रहे हैं, जो आपके पास एलईडी है या लेज़र डायोड है उसकी पावर कितनी है, कितनी इंटेंस लाइट है, तो पी इन फिक्स हो गया। अब आपको जो डिटेक्टर वहाँ यूज़ करेंगे
जितनी लाइट वहाँ पे पहुँचेगी, अब पी आउट कितना पहुँचेगा वो आप यहाँ से निकालेंगे, और जो आप डिटेक्टर यूज़ करेंगे दैट डिटेक्टर शुड बी सफिशिएंट एनफ टू सेंस दिस पावर, है ना, मतलब उसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए। आपने मिलीवाट लॉन्च किया है, वहाँ माइक्रोवाट पहुँच रहा है, तो आपका डिटेक्टर भी फिर माइक्रोवाट वाला होगा। तो अगर आपका डिटेक्टर फिक्स है, आपके पास तो डिटेक्टर वही है, तो फिर आपको पी इन लेज़र हायर इंटेंसिटी का लेज़र लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आपको फाइबर दूसरा लेना पड़ सकता है जिसका एटेन्यूएशन कम हो, है ना। सो दिस वे लिंक डिज़ाइन के लिए ये एक यूज़फुल रिलेशन है जो कि यूज़ होता है। इसमें 4 पैरामीटर्स एंड हाउ दीज पैरामीटर्स आर एडजस्टेड दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, आपके पास सोर्स होगा, डिटेक्टर होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा और एक डिस्टेंस। कुछ भी नहीं है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स फाइबर भी लिमिटेड वही है, डिटेक्टर सोर्स भी वही हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि रोपड़ तक तो जा सकता है सिग्नल, रोपड़ से आगे नहीं जाएगा, रोपड़ से आगे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर आप इसको रोपड़ तक यूज़ करेंगे। और उसके लिए फिर देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म, देन व्हाट इज दैट वी यूज रिपीटर्स। क्या करेंगे, रोपड़ में सिग्नल को रिसीव किया जाएगा और वहाँ पे सिग्नल को रिप्रोड्यूस किया जाएगा, समझिए ना, वहाँ पे उसको डिटेक्ट किया जाएगा और दोबारा से रिप्रोड्यूस करके दोबारा अगेन यू विल रिप्रोड्यूस का क्या मतलब, अगेन यू विल लॉन्च डिफरेंट पल्सेस बट ऑफ हायर इंटेंसिटी। इंटरवल तो उनका फिक्स है, इंटरवल तो फिक्स है, डेटा रेट तो फिक्स है कि किस रेट से आपने ट्रांसमिट करनी है, वो तो ऑलरेडी है ही है, बट आपने क्या करना है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है, एंड दैट इज कॉल्ड रिपीटर। सो रिपीटर इज अनदर यूजफुल एक इक्विपमेंट होता है जो कि फाइबर नेटवर्क में यूज़ करते हैं, और एंड इट इज़ इन बिटवीन द स्टेशंस, इट इज़ इन बिटवीन द स्टेशन टू एम्पलीफाई द सिग्नल। सिग्नल स्ट्रेंथ अगर कम हो रही तो बीच में फिर उसको रिपीटर लगा के इम्प्रूव किया जाएगा, राइट। सो नाउ वी विल सी एब्जॉर्प्शन phenomena, absorption of light. Basically absorption means absorption of light. So here silica fiber core is there. So when we synthesize silica in laboratory, silica जो एक लैब में बनाया जाएगा, in that process OH ion get trapped, हाइड्रोक्सल आयन, OH आयन जो है SiO2 में इनवेरिएबली इट विल गेट ट्रैप्ड, ओके, हाइड्रोक्सल आयन। तो ये जो OH ग्रुप है ये इसमें रह जाएगा, और आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी डिफरेंट ये ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड ग्रुप है ना, आप हाइड्रोक्सल आयन ग्रुप कह सकते हो। दीज रेडिकल ग्रुप्स as well as the molecules, they have vibrational tendencies. जब अगर आप उनको लाइट एनर्जी मिलेगा, these groups, these bond basically bond. When you say OH group means there is bond between O and H. So getting energy from external system, these atoms making these groups, radical groups या molecules, these atoms starts vibrating, okay, these atoms starts vibrating and there is certain vibrational frequency. हर एक बॉन्ड का अपना एक करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होता है जिस पे दे वाइब्रेट लार्जली, ओके। इट मीन कि इफ लाइट ऑफ दैट मच एनर्जी falls on the molecule, they will start vibrating. And if energy of different value falls, then they will not vibrate. तो उनकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, किसी भी बॉन्ड का एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी न्यू है. सो corresponding to new frequency, energy associated with the vibration is h nu. तो जब h nu एनर्जी मिलेगा
then molecule or this bond will starts vibrating. और इतना एनर्जी नहीं मिलेगा, it will not vibrate. Okay? It means if you fall this much energy, molecule will start vibrating, absorbing this energy, and once it is absorbed, your energy, your photon lost. You can say photon get absorbed. आपके मोलिक्यूल ने, आपके बॉन्ड ने, आपका जो हाइड्रोक्सल जो भी एक रेडिकल ग्रुप है उसके जो बॉन्ड्स हैं उस ग्रुप ने वो दैट फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया. दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन मीन. ठीक है, यही चीज़ हम CO2 लेज़र में भी देखते हैं कि उसकी भी एक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है और उसके एनर्जी लेवल भी वहाँ पे वैसे ही निकले थे, है ना. मोलिक्यूल को अगर CO2 मोलिक्यूल को उतनी एनर्जी मिलेगी तो वो वहाँ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. मीन्स इट विल बी वाइब्रेटिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी लाइंग इन दैट स्टेट. ओके, सो दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन मीन. इट्स क्लियर कि मोलिक्यूल्स के लिए या रेडिकल ग्रुप्स हैं इनके लिए व्हाट वी मीन बाय absorption, what are the vibrational frequencies? That if you allow all energies, then these molecule or bonds, radical groups, they will absorb certain energy frequencies, certain energy corresponding to their characteristic vibrational frequency. उनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसी पे वाइब्रेट करेंगे. इसका मतलब उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस इज अ सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन that how absorption leads in molecules bonds, and that is due to vibrations of the bonds. And every bond, अगर आपका मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल के अंदर you will find so many bonds. तो जो भी बॉन्ड है सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है और यही टेक्निक है मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए. जितने भी नार्कोटिक्स और दूसरे ये डिपार्टमेंट है उसमें यही टेक्निक यूज़ की जाती है कि वो क्या करते हैं, लाइट फॉल फेंकते हैं आपके मटेरियल के ऊपर और देखते हैं कि उस मटेरियल ने कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करी. और उस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब है इसके अंदर वो कंपाउंड हो सकता है और वो उनको ऑलरेडी पहले से नोन है कि किस कंपाउंड में क्या क्या बॉन्ड्स हो सकते हैं. कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड है ना तो उसमें क्या क्या बॉन्ड्स हो सकते हैं वो वेरी वेल नोन फ्रॉम द केमिस्ट्री. और उन बॉन्ड्स की फ्रीक्वेंसीज नोन है, उन बॉन्ड्स की एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो है वो भी नोन है. तो अगर कहीं कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होने का मतलब है इस मटेरियल के अंदर जो कंपाउंड है इसके अंदर ये वाला बॉन्ड है, मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड है. उससे वो सेंस कर लेते हैं कि आपका जो भी आपने मटेरियल लिया है वो मतलब उस तरह का था. और वो तो उनको पता ही होता है कि जो रेस्ट्रिक्टेड जो मटेरियल है रेस्ट्रिक्टेड है ना. सो दिस वे दे डिटेक्ट. सो हियर OH मोलिक्यूल का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है 945 नैनोमीटर्स, 1240 एंड 1380 नैनोमीटर्स. Okay, that is 0.94540 and angstroms. This much angstroms. अगर आप विजिबल के हिसाब से चलेंगे ना, एक कन्वेंशन एंगस्ट्रॉम के हिसाब से, then these are the frequencies. मतलब मीन्स क्या हुआ कि OH आयन will absorb these wavelengths. जो भी लाइट एनर्जी आप फॉल कर रहे हैं OH विल अब्जॉर्ब दीज वेवलेंथ्स. ओके, दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन. एंड बिकॉज इसमें लार्जली OH प्रेजेंट होगा. जब SiO2 सिंथेसाइज करेंगे देयर विल बी OH. ओके, इसका स्पेक्ट्रम आप देखेंगे. ओके, इसको स्पेक्ट्रम देखने का मतलब है कि इफ यू फॉल ऑल लाइट, ऑल एक विजिबल सोर्स से आप सारी एनर्जी सारी वेवलेंथ आप इस मटेरियल के ऊपर डाल दीजिए तो कौन कौन सी एब्जॉर्ब होंगी. इफ यू फॉल ऑल वेवलेंथ ऑन द सिलिका फाइबर तो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, ये वाली वेवलेंथ. तो हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे एब्जॉर्प्शन. तो हम ये कहेंगे कि इस वेवलेंथ 945
1240 एंड 1380, इन पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं, है ना। बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी, बट दीज वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब। अगर इसका ट्रांसमिशन प्लॉट देखेंगे, टी ट्रांसमिशन, दैट you pass light through the material and you see how much light passes, you will find all light will pass except this, ये पास नहीं होगी, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये होगा ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। ये क्लियर है, ये ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड आइडिया सिंपली हियर इज दैट certain wavelength will be absorbed, और OH आयन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ये वाली। ओके, नाउ लेट अस कंबाइन दिस विद द रेले स्कैटरिंग। आपके पास रेले स्कैटरिंग का जो रिजल्ट है, नाउ वी विल प्लॉट हियर लॉस वर्सेस लैम्डा। ओके, लेट अस से हियर 945, 1240 and 1380। ओके, तो अब आपने यहाँ पे प्लॉट करना है लॉस। ओके, वंस दीज वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड, व्हाट विल बी लॉस फॉर दीज वेवलेंथ? लॉस अभी एब्जॉर्ब हो गई ना, तो एक तरह से लॉस नहीं हो गया। So loss for these loss at these wavelength will be high. Okay, so you have to plot loss including loss due to Rayleigh scattering plus loss due to absorption. Right. So what you will get it something like ये आ जाएगा। आगे IR में जाएंगे तो और लॉस ड्यू टू IR, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन भी होता है ड्यू टू अदर फिनोमिना, वो भी एब्जॉर्ब होगा। सो देयर लॉस फर्दर इंक्रीजेज फॉर IR। सो दिस वे नाउ कंबाइनिंग, व्हेन यू कंबाइन ऑल थ्री, वेयर यू फाइंड द लॉस इज मिनिमम, वेयर यू फाइंड लॉस मिनिमम। आपको दिखेगा कि एक ये पोर्शन है जहाँ पे लॉस मिनिमम है, एंड इट इज वन हियर द लॉस इज मिनिमम। ओके, सो दीज टू points are corresponding to 1300 nanometer and it is 1550 nanometers. Okay, because आप यहाँ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे स्कैटरिंग भी है ना, so due to scattering loss is more here, so loss is minimum here and here, इसके बाद IR loss बढ़ जाएगा। infrared higher wavelength है, they also get absorbed. So where the loss is minimum, that is at the 2 points, and due to this reason these are two wavelengths at which entire communication system work। जितना भी communication system हो रहा है उसमें अब क्वेश्चन अराइज कि कौन सी लैम्डा यूज करेंगे, है ना। we will be using only 1300 nanometers or 1550 and these are the standard। now it's a kind of एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, वाइवा टाइप क्वेश्चन है, कि जब आप कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप जानते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में जितना भी लाइट प्रोपेगेशन यूज़ हो रहा है, कौन सी वेवलेंथ हम यूज़ करेंगे, कौन सी किस वेवलेंथ पे आपका पूरा सिस्टम वर्क करेगा। देयर आर टू वेवलेंथ्स ओनली, दैट इज 1300 नैनोमीटर्स एंड 1550, स्टैंडर्ड है ये। अब क्यों करेंगे इसको ही क्यों करेंगे, अब लॉस फैल जाएगा। तो जब आप इसको लॉस बोलेंगे तो अब पता चल जाएगा कि आपने क्या कुछ पढ़ा है, कितना की जानते हैं, है ना। और आप यही नहीं बोल पाएंगे, आपने ऑप्टिकल फाइबर तो पढ़ लिया है, ठीक है, लाइट पास करते हैं, इंफॉर्मेशन पास इन फॉर्म ऑफ लाइट, बट क्या लाइट वेवलेंथ है, आप बोलेंगे कुछ भी कर लो, है ना। आप बोल सकते हैं कि कुछ भी वेवलेंथ कर लो, क्या है, तो फिर समझ जाएंगे कि नहीं आपने कुछ मिस कर दिया है ना।
और है ना, आप बोलेंगे नहीं दीज आर द वेवलेंथ वेयर इंटायर कम्युनिकेशन इज यूज, तो फिर वो बोलेगा नहीं अच्छा, तो फिर बताइए थोड़ा सा क्यों, थोड़ा आप और बताएंगे तो, क्योंकि यहाँ लॉस कम है। क्यों कम है? बिकॉज ऑफ इसकी वजह से क्या होता है, फिर आप ये बताएंगे। वो तो फिर डेप्थ है कि आप कितना आप बताते जाएंगे उतना अनदर पर्सन कीप ऑन आस्किंग, और फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप पहले ही पॉइंट पे रुक जाएंगे, आप बोलेंगे कुछ भी लाइट पास कर दीजिए, फिर वो बोलेगा नहीं टॉपिक चेंज कर दो इसके बारे में। ओके, सो ऑब्वियसली द लाइट सोर्स, अब नो क्वेश्चन अगेन, लाइट सोर्स जो यूज करेंगे लेजर डायोड का क्या वेवलेंथ होना चाहिए? अब अगेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए लेजर विच इमिट्स दिस वेवलेंथ, है ना। अब इस वेवलेंथ को इमिट करने के लिए वी कैन नॉट यूज सिलिकॉन जर्मेनियम। अगेन वही आपके पास 3-5 कंपाउंड, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है जो कि ये वाली वेवलेंथ देगा, और ये वेवलेंथ कहाँ से मिलेगी, वो उसके बैंड गैप से डिपेंड करेगी, है ना। वेवलेंथ इमिटेड विल बी करस्पॉन्डिंग टू, सो दैट यू हैव फार्मूला Eg इक्वल टू hc/λ। ओके, सो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो h हो जाएगा 6.624 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा आप रख लीजिए फॉर एग्जांपल 800 SC/λ ही रहने दीजिए इसको, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने लैम्डा को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, hc/q। q का मतलब है इस Eg को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लिया। अगर q से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जूल में। ओके, सो ये वैल्यू आएगी 1243.125 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो ये फार्मूला बन जाएगा Eg विल बी 1243.125 लैम्डा नैनोमीटर्स EV। अब आप ये फार्मूला याद रखिए, आपको कैलकुलेटर लेके चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये फार्मूला लेके रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगी और आपको कैलकुलेटर भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली 1243.125 डिवाइड बाई लैम्डा नैनोमीटर में यूज़ करना है। जब आप लैम्डा को नैनोमीटर में यूज़ करेंगे तो Eg आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, और अगर आप Eg को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करेंगे तो लैम्डा नैनोमीटर्स में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यस, हियर वी मिस्ड वन थिंग, that these are the two wavelengths which are used for communication system, information transformation from one point to another, and this is another wavelength 850. This is used wherever you require visible light, जहाँ पे आपको विजिबल लाइट की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है एप्लीकेशन कुछ ऐसी हो जहां पे आपको विजिबल लाइट चाहिए, तब वहां पे इसको 850 पे इसको यूज करेंगे, बिकॉज हियर 850 पे आपका अगेन लॉस आर रिलेटिवली लेस। सो दीज आर द 3 वेवलेंथ्स, दीज आर द 3 रीजन्स, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल विंडोज, फाइबर विंडोज, दीज आर कॉल्ड फाइबर विंडोज। विंडोज, व्हाट इज ए विंडो? एक विंडो क्या होती है? Window is something through which something can pass, light can pass, you throw a stone that can pass, so something can pass. अब फाइबर विंडो का मतलब है फाइबर किस लिए यूज हो रहा है? पासिंग लाइट, so light can be passed through the fiber without getting less absorbed, that's why fiber windows. So these 850, 1300 and 1550, these are called fiber ऑप्टिकल विंडोज, ऑप्टिकल फाइबर विंडोज, और इन्हीं 3 पे हम नॉर्मली एक यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सॉरी आपको